some of you only discuss your qualifications or you taking part as a member in any of the activities. But what initiatives do you have for specifically PT Month Society and Einstein's a society that will be based on merit and unbiasedness? Any month. Any for a month. I can answer that question. So PT Society हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो PT MBA पे हिस्सा लेना चाहते हैं. Talking about MBA specifically, वहाँ we try getting a coach. We have talked to Sarasgar, उसमें we are getting a coach क्योंकि I remember 2017 में we used to compete with HSN. We used to beat HSN at MBA. We were one of the best runners in Lahore, लेकिन due to not having a coach for a very long time, तो हम MBA से जीत सके. So I want to be a coach रखें. And talking about biasness, so we have the whole executive council as well as Sir Rifat and Sir Aswad who will judge the people on their capabilities, जिससे biasness नहीं होगी. No biasness, because we have our event coordinators and vice president. If anyone wants to answer the question, they are offered. Moreover, guys, अगर आप लोग के पास already कोई आपने इवेंट्स में हिस्सा लिया हुआ है या वो कोई किसी उसमें आपने already कोई काम किया हुआ है, इसमें आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं उसमें सिलेक्ट होने के. ऐसा ठीक है, जो रिपीटेशन में आप अप्लाई कर रहे हो आपके चांस कर रहे हो. जिससे आपने सवाल किया था, आपने पिछले किसी उसमें कोई पार्टिसिपेशन या किसी उसमें हिस्सा लिया हुआ है, उससे आपके चांस वैसे ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप ये EC और ठीक है. Any questions? Dear voters, you have to specify whom you are going to ask the question. I mean, whether to be candidates who are actually contesting for the deputy head boy or the ones who are contesting for the head boy. So please specify. My question is to Abdullah Naveed and Anand Sheikh. Can you please mention any of the sports event that you took part in? Thank you. And the awards as well, like the gold medals, silver medals, bronze medals, or any award in general. That's a very valid question. Certificate as well. Thank you. That's a very valid question. ठीक है. First of all, PTO sports का होता है हर साल, and हर साल I take part in that. पिछले साल यानी इस साल technically, I took part in the sports gala, in the basketball team and football team. Football team I took part in the last year. And I won silver medal with basketball team. But to be fair, क्या आप लोगों को फर्क पड़ता है मैं जीतूँ? क्या आप लोगों को फर्क पड़ता है मेरी पर्सनल चीज़ से? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? आप लोगों को इवेंट्स में भेजूँगा या नहीं भेजूँगा? That is what the rightful question is. And उसका yes, Anand Jamshed. I as well took. I also participated in the beauty fest that was held last year. Although our team, basketball team won nothing, but we learned a lot from that. And the very next year, I took part in the basketball team and the volleyball team. In the basketball team, I was the team captain and we secured a silver medal while beating O1, beating O3 as well. Any other question? When the question is being answered, we have to listen to what the candidate is saying. So do not be involved in personal talking to each other. Be mindful, all of you. My question is to Mr. Chima. आपने forward की पुरस्कार की बात की, आपको माशाल्लाह डिप्टी हेड बॉय भी रह सकते, तो तब कहाँ से गोल? Good question. मैं self courses लेकर आ रहा हूँ फरमान राफे जो who earns himself out of those things, blogging करता है वो and he earns out of that. वो courses करा रहे हैं हार्वर्ड के. If you check EDX, you might probably know वो courses करते हैं वो हम वहाँ से courses करा रहे हैं हार्वर्ड के and उसके certificates course करेंगे but the course itself is free. And अगर ऑटो की बात कर रहे हो तो I was retired by and उसमें I served as if you are kind enough to listen, Director Logistics at PT plus Director Logistics Time Science, Director Relations at PT Mantra. That was the most I could not do because I could not be in the executive council. That is the thing I could do being in auto क्योंकि मैं executive council में आ सकता था. And for the first time एक O3 से बंदा secretary जनरल बना था. That was a big thing. And you were the parent as well. So I hope you know कि PT month 4 अच्छा हो गया था compared to other events जो पापड़ के होते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा
भजन आपका साइन पीच क्यों है? That is his favorite fruit. That is my favorite fruit. But it is very easy to remember. Everyone has a sign. किसका डोर है, किसका की है. I really don't know किसका sign डोर है, किसका की है, किसका बैलकन है. Peach is an easy sign to remember and just ये रखो. मेरा क्वेश्चन हर हेड बॉय के कैंडिडेट से है कि आप सारे यहाँ पे खड़ो के कह रहे हैं यार मैं स्पोर्ट्स में बेस्ट हूँ, दूसरा खड़ा होकर कह रहे हैं यार मैं स्टेम्स में बेस्ट हूँ, अगला खड़ा होकर कह रहे हैं यार मैं स्पीचेस में बेस्ट हूँ. एट द एंड ऑफ द डे आप सबने नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि लाहौर के लेवल पे ये मैच खेला, राइट? जेटी में आप जाके कर रहे हो, आप ISL में जाके कर रहे हो, बीकन हाउस, इस तरह के सारे. How can we actually declare कि sports events have precedence over STEM events या फिर STEM events have precedence over debates events? हमारे लिए at the end of the day you all are equal in that. ठीक है, एक जगह स्पेशलाइज कर रहे हैं, दूसरा दूसरी जगह. और स्पेशली अब्दुल रहमान ताहिर से है, you declared yourself as STEM leader या जिस तरह भी आप उसे wording दो. आपकी जो achievements हैं वो at the end of the day आपने टेक्नोफेस्ट किए और टेक्नोफेस्ट में आपने क्वालिफाई नहीं किया. तो how are you actually trying to अपनी स्पीच में मैंने भी यार मेंशन किया है कि एटलीस्ट माय कैंपेन आई कांट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, इट्स गोना बी अबाउट इंक्लूसिविटी. देखो वी आई अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन हैज समथिंग दैट दे आर गुड इन व्हिच another person may not be good. So I try my very best to make that talent come out of that person in a good environment. Now it's over to Abdul Rahman. यार देखो, आपको पता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर साल में मैक्सिमम 2 या 3 कर सकते हो. उस पर स्कूल की स्पॉन्सरशिप्स का भी मसला होता है और भी मसला होता है. लेकिन टेक्नोफ्रेंड्स के अलावा मैंने और भी काफ़ी की हैं. जैसे मॉडर्न रोबोटिक्स में मैंने अभी 3 से 4 टीम रजिस्टर की है, वो भी एक इंटरनेशनल इवेंट है. लेकिन मैं ज़्यादा नेशनल लेवल पे इसलिए करता हूँ क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स का एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मसला हो रहा होता है कि आप कैसे एक्सपेंसेस हैंडल करोगे, क्या ट्रिप का कैसे आप जाओगे आओगे सारा. तो इसलिए मैं प्रेफर नेशनल लेवल पे करता हूँ और इंटरनेशनल लेवल 1-2 जगह. अच्छा अफान, आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन. आपने कहा था इंटरनेशनल इवेंट्स हम कब करते हैं. टू बी फेयर एक बात है कि लोकल इवेंट्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इंटरनेशनल इवेंट्स की. इंटरनेशनल इवेंट्स बंदे के पर्सनल पोर्टफोलियो को एनहांस करते हैं, दैट्स वेरी राइट, और करने भी चाहिए. बट जो आपके पीटी के 3 मेजर इवेंट्स हैं, पीटी फेस्ट, पीटी मंथ और तीसरा था इवेंट्स, उनकी आइंसाइट्स, उनके लिए जो डेलीगेशंस आती हैं वो हमेशा आपके लोकल इवेंट्स के थ्रू है. जीटी कन्वेंशंस पर आप जाओगे आपको डेलीगेशन वापस पीटी आइंसाइट्स पे मिलेगी. आप किसी मंथ पे जाओगे जो नेशनल लेवल पे है तो आपको अपने स्कूल के लिए डेलीगेशंस मिलेगी. इसलिए लोकल इवेंट्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट पापतुर के लिए भी ओवरऑल. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपने जो सिटी जाके खेलते हैं, यहाँ जाके खेलते हैं. और टेक्नोफेस्ट की बात की इसकी रिपोर्ट फेल है. पहली बार टेक्नोफेस्ट हमारा एक टीम वर्क था, टीम एक थी लेकिन सबकी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स बनी थी. उसमें अफान की अपनी रिपोर्ट भी फेल हुई है, सबकी रिपोर्ट फेल हुई है. स्पोर्ट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाहौर वाइस की तरफ से अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ था लेकिन मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, खेलने नहीं गया टूर्नामेंट. मैं अपने अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट 2020 की बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट हुआ 2016 की बात कर रहा हूँ. उसके अलावा मैंने टेक्नोफेस्ट और इंटरनेशनल में सारे किए. You talked about giving precedence to different sports and debating contests. I think that every one of the event is equal to other. We should not discriminate people upon whether they do debating, whether they do sports, or whether they like science events. They should be treated equally as they are equal in my eyes at least. And I will be treating everyone equally if I become the deputy head. My question is for all the candidates here. आप सबने O levels की तो बात की है, A2 वालों क्या जिसे आप वोट मांग रहे हैं? आप सबने O level की कैंपेन की है, लेकिन
लेकिन वोट आपको AQ से भी चाहिए और AS से भी चाहिए, तो उसका क्या? उसका तो आपने कुछ भी नहीं बोला, हमें नेक्स्ट में लेके जाएंगे आप। The thing is कि A2 की क्लासेस हो रही होती हैं, स्केड्यूल बहुत मिक्स होता है। You don't know कि आपकी क्लास कब हो रही है, जो उसके टीचर्स होते हैं they don't specifically want के बच्चे उनकी क्लास में आके उनकी क्लासेस सब पे talking about votes and everything. Common room में if you guys were there, I did talk to person and tell them guys to vote for me. लेकिन if you guys were in the common room, I did a campaign in common room. I don't know about other candidates, you can question them. That is. और उमर भाई क्या कहते हैं, आप तो वैसे भी टेक्नोफेस्ट के लिए ठीक है, अगर आप अवेलेबल हो कॉमन रूम में तो हम आपको जो कोर्सेज हैं जिनके सर्टिफिकेट आपको मिल सकते हैं ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और कुछ ये सवाल हेड बाय कंटेस्टेंट से लिए। अच्छा, वादे सब करने इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे तो सबने वादे किए थे हम पाकिस्तान को दुनिया के बहुत अच्छे मुमालिक में ऐड करते हैं, लेकिन क्या आप ये वादा करते हैं कि हमारे स्कूल में चेंज आएगा या फिर यूके फरार हो जाएगा? देखो मेरा वादा कि इस साल ना हमारे यहाँ पे ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी था ठीक है, स्कूल हमारा वो सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर रहा था ठीक है। इस सब्जेक्ट को रखने के मैंने सर से काफ़ी बातचीत की ठीक है, मिस माली को भी कल हमारा इम्पोर्टेंट है ठीक है, सब्जेक्ट को आगे ये करते हैं ठीक है। मैंने इस सब्जेक्ट को रखवाने के लिए काफ़ी बात और की इसके पीछे, और एट दी एंड अब ये हुआ कि वो स्कूल हमें वो सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं ठीक है। मैं उसकी क्लासेस लेने जाता हूँ कैंपस पे स्कूल की कन्वीनियंस पे ठीक है। ये एक वो आप कह लो एक टाइप की अचीवमेंट या मेरी कन्विंसिंग एबिलिटी है कि मैं आपकी जो भी बात या आपका जो भी प्रॉब्लम होएगा वो मैं सब फैकल्टी या एडमिनिस्ट्रेशन से कन्विंस करवा सकता हूँ ठीक है। Could you give the mic back to Shami and say, what do you think a change is in school? For me, change ये नहीं कि हेड बॉय एक पोजीशन लेके चलता है। हेड बॉय क्या बाकी वादे हुए थे, क्योंकि पुराने कैंपस में हमसे लोगों से वादे किए थे लेकिन वो दिखे हमें कहीं नहीं। क्या आप लोग बाकी क्लब्स को अलाइव रखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स बताते हैं कि सारे डेड हो गए। क्लब्स को लाइव रखना क्लब्स पेरेंट्स का काम है एंड हेड बॉय का काम उसको ऑर्डर करना होता है ठीक है। तो पेरेंट्स आर वर्किंग गुड ठीक है। अगर हमारे पेरेंट्स एंड क्लब्स के जो एक्सीडेंट कंप्लीट डिसाइड हुआ है दैट इज गुड इनफ, क्लब्स लाइव रहेंगे। टॉकिंग अबाउट के व्हाट इज द चेंज, आपने चेंज का कहा आपने बस ये कहा कि रिस्पांसिबिलिटीज को फील करनी है, दैट आई डोंट थिंक दैट इज अ चेंज, दैट इज स्टिल योर रिस्पांसिबिलिटी। अभी हमारे हेड बॉय हमें नजर तो नहीं आते, तो पीछे बैठे हैं, लेकिन अभी आप अगर बनते हैं तो क्या स्कूल में नजर आएंगे हमें, या फिर बाकी चेंज जो आप कहते हैं कि इंटरेक्शन समझाएंगे हम माहौल को और क्रिएटिव बना देंगे या फिर लाइवली बना देंगे, क्या वो बाकी होगा कि नहीं? मैंने भी बताया आई रन एन एनजीओ माई सेल्फ, मैंने वहाँ समर हॉलिडेज में इंटर्नशिप कराई है। आई नो हाउ टू कैरी ऑन इंटर्नशिप, दैट्स व्हाई आई वांटेड यू गाइस टू डू इंटर्नशिप टू। आई वांटेड यू गाइस टू नो एक्सपीरियंस मैंने की इंटर्नशिप करनी है, कैसे होती है इंटर्नशिप, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस हैवंट इवन डन इंटर्नशिप। बाकी स्टेइंग इन पार्ट आई वाज द डायरेक्टर ऑफ सेक्शन क्लास सारे पे कर दी। I don't think so I have to explain that again. I will be present here and I would like to ask this question to the candidates too. Everyone needs to be an all-rounder. Sports are not the only thing. Everyone is not passionate about sports. What other activities and how will you do them? Can you explain them thoroughly? And you said, and the other candidates said, okay, we need to end favoritism. How do you like to end favoritism, and could you give any examples of previous favoritism we had in the school? आपने बात की है कि हमें हेड बॉय क्लासेस में नजर नहीं आते। अगर हेड बॉय का काम है कि आपको इवेंट्स में लेके जाना नहीं है, उसका काम है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना। बाकी ऐसे अगर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है वो स्पोर्ट्स सोसाइटी के पास जाता है, आपके क्लासेस में प्रेसिडेंट आएंगे, स्पोर्ट्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट आएगा। अब अगर आपको स्पोर्ट्स सोसाइटी अगर आप कहते हो तो आपके क्लासेस में अगर किसी बच्चे को नहीं मिला उनसे बात करें आगे, अगर कोई हेड बॉय से बात करें ठीक है। अगर कोई हेड बॉय आपको नहीं मिला, मैं अपनी अगर आपको बात करूँ आपके क्लास में कोई एक आधा दूसरा स्टूडेंट होगा, आप उससे बात करो वो बात डिस्टर्ब भाई मेरा सवाल अहमद से है। आपने साइकोलॉजी का फैक्ट मेंशन किया
लेकिन ये आपका खुद का फायदा है, इससे हमें का फायदा पहुंच रहा है। आपने हमारे ये मेरा फायदा है, ठीक है। लेकिन आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी आगे जाके रखना है, अब उनको प्राइवेट ट्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्राइवेटली एकेडमीज में नहीं जाएंगे ट्यूशन देने, ठीक है। वो भी आप साइकोलॉजी ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका सपोज भी मैं हेड बॉय नहीं हूँ तब ये काम होगा, और अगर मैं हेड बॉय बन जाता तो फिर जस्ट इमेजिन व्हाट कैन आई डू, ओके। साइकोलॉजी के अलावा भी सब्जेक्ट्स अरेंज हो जाएंगे, बट उसके लिए आप लोग में से जिन्होंने रखना है लाइक 3-4 बच्चे और इकट्ठे हो जाओ, फिर हो जाएगा वो सब्जेक्ट और टीचर आगे हो जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स? यार एक सवाल में आई आस्क्ड क्वेश्चन कि हाउ वुड यू लाइक टू एंड फेवरेटिज्म, क्योंकि आपने किसी स्पीच में बोला था कि यू वांट टू एंड फेवरेटिज्म, हाउ वुड यू लाइक टू एंड फेवरेटिज्म एंड कुड यू गिव एनी प्रीवियस एग्जांपल्स जो हमारे स्कूल में फेवरेटिज्म हुई हैं? फेवरेटिज्म लाइक के डायरेक्टर्स फ्रेंडशिप बेस पे बने हैं, डायरेक्टर और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वहाँ के जो एज फुटबॉल के फेवरेटिज्म बेस पे बने हैं। सही है, फेवरेटिज्म बेस अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उससे पहले एक छोटा सा इवेंट शुरू होगा, छोटा सा इवेंट My question is to the advice candidates. There is a change of system coming. Are you going to imitate the same one or make a new one? Can you speak more clearly? My question is to you guys. There is a change of system coming. Are you going to imitate the same one or make a new one? We will try our best to make a new one, क्योंकि कुछ पिछले कुछ सालों से ना यहाँ पे क्लब सोसाइटीज वगैरह में कोई मेजर और मतलब काम नहीं हुआ, ठीक है। कोई प्रॉपर वो चली नहीं, ठीक है ना। बॉय स्पोर्ट्स का कोई इतना वो हुआ, ठीक है। मैंने खुद ऑप्ट किया था उसके लिए, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इस बार हमारी कोशिश ये है कि आपके जो प्रेसिडेंट्स जो क्लब्स के होंगे उनके साथ हम मिल के, ठीक है, उनसे बात करें, उनको प्रेशराइज करें कि वो आपके साथ कोई इवेंट या जो भी है वो कंडक्ट करवाएं और आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में और इन्वॉल्वमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। My question is to everyone, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है कि why doesn't anybody highlight the positivity PT is bringing, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं PT में ये फॉल्ट है, ये नेगेटिविटी है, तो ये क्यों नहीं कहता कि PT में जो चेंज आ रहा है वो उसकी कोई बात क्यों नहीं करता, ठीक है ना। Secondly, why are those people not talked about जो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, जो इंटरनेशनल जीत के आते हैं? What about those who have time sacrifice किया, अपनी effort sacrifice की personal achievements के लिए? Why are they not talked about? And are you guys degrading them by not talking about them? साथ में पूछा कि appreciate किया जाता तो people who win gold medals. I don't think so. This is a question to be asked to the candidates. This is a question to be asked to the management, to the students. अप्रिशिएट भी किया जाता है। पिछले 2 सालों से जो हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे सोसाइटीज़ के, उनको अपनी सोसाइटी के सर्टिफिकेट्स भी नहीं मिले। किन किन को सर्टिफिकेट मिले थे सोसाइटीज़ के? Yeah, एक सेकंड, let me repeat my question. Why doesn't anybody highlight the positivity PT is bringing? मैं ये नहीं कह रहा कि अप्रिशिएट नहीं किया जाता। PT में जो पॉजिटिविटी है उसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नेगेटिव बात है। PT के ये फॉल्ट्स है, क्लब सोसाइटीज काम नहीं करती, काम से फारे गए, ये है वो है, पॉजिटिविटी की बात नहीं करता। हर साहब ने सवाल किया कि पॉजिटिविटी की बात क्यों नहीं करते। देखो अगर एक पॉजिटिव चेंज आया है, वी आर नॉट हियर टू चेंज करने नहीं आ रहे, हम कुछ चीज़ों को चेंज करने आ रहे हैं जो नेगेटिविटी है। जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है वेल एंड गुड, जो नेगेटिविटी है उसको भी खत्म करने आ रहे हैं। One last question. This will be the last one. The final question. सर, मेरा सवाल 500 डिप्टी एडवर्ड डेलीगेट्स के लिए है। कुछ पीपल क्लेम कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स खड़े हैं डिप्टी एडवर्ड के लिए वो फेवरेटिज्म और बायसनेस के ऊपर खड़े हुए हैं रादर देन द कैंडिडेट्स ऑन क्रेडिबिलिटी एंड दिस हैज प्रूवन कि 3 कैंडिडेट एक क्लास में खड़े हुए हैं। ओरिजिनली 3 स्कोर अब 3 हो गए हैं, तो अब वो लोग मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और ऑनलाइन जस्टिस मांग रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? 5 से 5 यार कौन सी जस्टिस थोड़ा क्लैरिफाई कर दो ताकि बेटर आंसर हम कर। यार आपने जो नोट जस्टिस के लिए आया हुआ था, कौन सा जस्टिस? लो जस्टिस मांग रहे हैं इसके ऊपर, वो कह रहे हैं। अच्छा यार देखो, जो मैं कर रहा हूँ आउट ऑफ द स्कूल दैट इज माय ओन पर्सनल
चीज़ वो मैं कर सकता हूँ, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल, ठीक है। एज फॉर योर pretty much आप एक्यूजेशन लगा रहे हो मैनेजमेंट पे, which I मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं यार। ओके, लोग कह रहे हैं, देखो आई लाइक टू रिप्लाई टू द पीपल। आप क्या कहना चाहते हैं? यार मैं ये कहना चाहता हूँ O2 से आप मुझे ऐसा कोई बंदा ढूंढ दो which is as extra curricular में active as me, which is as academically fine as me, ठीक है। तो ये फेवरेटिज्म ना हुआ O2B से 3 out of 5 कैंडिडेट्स। यार अगर O2B में फेवरेट स्टूडेंट है, उसमें मेरी क्या गलती है? और भी क्लासेस हैं, और क्लासेस में अगर स्टूडेंट्स उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे, उसमें देयर इज नथिंग आई कैन डू, और मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। मैं ऐसे इसमें कोई नहीं चाहिए, इसमें रुक जाऊं। सबसे पहले टू आंसर योर क्वेश्चन आपको एक बात बताऊं, इंटरव्यू पैनल में आपको पता है कौन बैठा है? इंटरव्यू पैनल में सर असगर एंड सर रेफर बैठे थे, और मोस्टली ये दोनों आपस में स्विच करते थे। जब कोई इंटरव्यू सर रेफर ने लिए थे, कोई इंटरव्यू सर असगर ने लिए थे। हाउ कैन यू छोड़ के सारे ही करप्ट थे? इतनी बड़ी एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? एंड जस्ट द फैक्ट कि 4 कि 3 जो हैं वर्दी कैंडिडेट्स O2B से हैं, आप इस पे ये नहीं कह सकते कि एंटायर सिस्टम इज बायस्ड। आपके पास अगर कोई और वर्दी कैंडिडेट है हमारे अलावा, तो हमें बताओ, हम भी देख लें। I would like to say that आपके पास अगर प्रूफ है that on paper कोई better candidate था, वो select नहीं हुआ, तो आप वो हमें दो। As per accusations on O2B में अगर ऐसे candidates हैं जो extra merit test कर सकते हैं, academics कर सकते हैं, and they are active overall, so that is nothing that I can do. आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका क्या जो हमारे ग्रुप के लोग कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो भी तो वही जस्टिस मांगते हैं, लेकिन उनका जस्टिस नहीं बनता क्योंकि उन्होंने जुल्म किया था। इसी तरह अगर आप सिलेक्ट नहीं होते एट द एंड ऑफ द डे, आपको पता होना चाहिए कि आप हारते हो और जीतते हो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर आप हारते हो तो जरूरी होता है ये कहने का मतलब कि भाई नहीं मैं क्यों हार गया, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। थैंक यू। That concludes it all. Follow the instructions of Sir Rifat to go to your classes. Make line-wise movement and go to your classes in a disciplined way. Make row-wise movement.